Good morning, student. I'm your teacher Meena. Today I will teach the geography new chapter 6. The chapter name is natural vegetation and wildlife. Okay, student. The word natural vegetation, what do you mean by that? Because these vegetation related to naturally, those vegetation which come from the nature. In this chapter, first of all, we read the chapter. Okay. आपको पहले सबसे इम्पॉर्टेंट अपने चैप्टर को रीड करना है. इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको आफ्टर दैट वीडियो डिस्क्राइब करूँगी और उसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. लेट बी स्टार्ट विद चैप्टर. रीड इट. ओके. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to the visit the Manali in Himachal Pradesh along her classmates, and she recalls how surprised to saw the change in the land forms and the natural vegetation. As the bus climbed higher and higher, the deep jungles of the foothills comprising Salt Lake slowly disappeared. Okay, student, जो हमारी शामली है वो समर वेकेशन कैंप में जा रही है, मनाली जा रही है. जैसे ही हमारी उनकी गाड़ी ऊपर ट्रैवल करती है तो देखती है वेजिटेशन क्या है, चेंज है. अकॉर्डिंग टू हाइट वो चेंज हो रही हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू स्लोप वो चेंज हो रहे हैं. ओके. फ्रॉम द सलीमा ऑब्जर्व वी सरप्राइज दैट देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट of land and the character of vegetation. Okay. With the change in height and the climate change, the change natural vegetation. Okay, student, this is the main important point of this paragraph. According to height and climate and weather, the vegetation क्या होती है बच्चों? Change. The main factor of the changing of vegetation is height, climate, weather और many more things. वो हम इसमें read करेंगे. The growth of the vegetation depend on the temperature and moisture. Okay, student, जो growth होती है vegetation की mainly किस पे depend करती है? Nature and moisture पे. It also depend on factor like slope, thickness of the soil. Okay, student, physical features of our India and the climate of our India. Climate, weather, temperature, moisture. ठीक है. They are the main factor of the differentiation vegetation. Okay, student. East to west, north to south, हमारे इंडिया में vegetation change है. क्यों चेंज है? ड्यू टू द रीज़न इज़ वहाँ के रिलीफ अलग है, क्लाइमेट अलग है, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग चेंजेस है, तो हमारी वेजिटेशन भी क्या चेंज हो रही है. अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो 9th और 10th में एकदम वास्ट एरिया में, बहुत बड़े एरिया में. तो अभी इसके मेन आस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. हमारी वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मेन जर्नल क्लासिफिकेशन. ठीक है. ओके. तो हम कहाँ पे थे? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ओके. एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर. अब मॉइस्चर क्या होता है? एयर में जो वाटर वेपर्स की जो होती है प्रेजेंस होती है, दे कॉल बी मॉइस्चर. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक स्लोपी एरिया, थिकनेस ऑफ द soil. The soil भी also main important point. Then slopy area, temperature, moisture, climate. Okay, they are the factor which affect our vegetation. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation in this factor. Okay. अब मैंने बताया था नेचुरल वेजिटेशन है, प्लेस टू प्लेस चेंज है. अब राजस्थान में वेजिटेशन क्या है? बहुत ही कम है. और हम जब हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलते हैं, पेनिसुलर एरिया अराउंड द ईस्टर्न एरिया, तो वहाँ पे वेजिटेशन हाई है. ड्यू टू द मैनी रीज़न इज़ वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई लेवल पे है. प्रेसिपिटेशन मीन्स टू रेनफॉल. ओके. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as main three factor of the vegetation is forest. Okay. अब forest कहाँ grow करते हैं? Which grow where the temperature and rainfall are plentiful to spot tree cover depending upon three factor. Dense upon the forest are grown. Okay. स्टूडेंट, फॉरेस्ट अगर डेवलप कर रहा है, वेजिटेशन डेवलप कर रही है, तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वहाँ टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल हाई है. ओके. सेकेंड इज आवर ग्रासलैंड एरिया कहाँ ग्रो करते हैं? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट मतलब एवरेज रेन है वहाँ पे. एंड हर्ब्स, थ्रोनी शर्ब्स एंड क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन जस्ट लाइक इन राजस्थान. ओके. सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर. अब क्या कर रही है? अपनी जो ट्रिप की जो भी डिस्कशन है वो फादर के साथ कर रही है. तो उसके फादर भी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो भी कहीं कहीं ट्रैवल करते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट जो पॉलर रीजन्स, थ्रोनी बशेस, डेजर्ट, थिक ट्रॉपिकल हेडवुड फॉरेस्ट, मिड रीजन एंड मैनी मोर. Salima realized Himalayas have almost the variety of the vegetation which one can we see while moving from the equator to polar region. Okay.
अब जो सलीमा है अपने फादर से डिस्कस कर रही है कि उसने अपने समर कैंप में क्या क्या देखा, उसके फादर भी बता रहे हैं क्योंकि उसके फादर भी काफ़ी जगह विजिट किया। ओके, उसके बाद वो उसने क्या रियलाइज़ किया, हिमालय रीजन में वेजिटेशन बहुत डिफरेंट है इक्वेटर टू पोलर, बिकॉज इक्वेटर पे क्या है, सनराइज डायरेक्ट पड़ती है, हीट प्लेंटी ऑफ हीट होता है और ये प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, ड्यू टू द रीजन वी फाइंड हियर द प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन। ओके, the changes in the type of natural vegetation occur many because of changes of climate conditions. Let us go when the different types of natural vegetation of the world with the characteristic features of wildlife inhabited there. Okay, देखो, according to land, according to land, soil, humidity, temperature, vegetation is change, or where the vegetation change and where the wildlife also change. Okay, अब now we discuss about the forest. How many types of forest, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Okay, anaconda, one of the world largest snake found in the tropical rainforest. It can be kill eat the large animals such as crocodile. Okay, world largest snake का नाम क्या है, anaconda. Okay, the tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that is like a lungs of the earth. कैन वी यू टेल वाई. अब देखो, लंग्स ऑफ द अर्थ, हमारा वर्क क्या होता है लंग्स का, ब्रीथ करना. ऐसे ही अर्थ ब्रीथ करती है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेशन. और वहाँ देखो लंग्स क्यों बोला गया, क्योंकि वह हाईली वहाँ पे डेवलप्ड है वेजिटेशन. ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन है, इसका मतलब वो ऑल टाइम ग्रीन रहते हैं स्टूडेंट. और क्यों रहता है, बिकॉज दे हैव नॉट प्रॉपर टाइम टू लीव हर्स इट्स लीव और जो भी है. These forests also called the tropical rainforest. These thick forests occur in the region near the equator and close the tropics. These regions are hot, receive heavily water. देखो स्टूडेंट, टॉपर एवरग्रीन है यानी कि वहाँ टेम्परेचर हाई है, हाई प्रेसिपिटेशंस है, क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू ट्रीज है, तो ऑल जो वेजिटेशन के मेन इंपॉर्टेंट नीड्स है वहाँ वो फुलफिल हो रही है. इसी रीज़न से ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स वहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है. These forests are called the tropical rainforest. The thick forests occur in the region near the equator. Equator के आसपास है, close to the tropics. These regions are hot. Okay, receive heavy rainfall. Hot है, heavy rainfall receive करते हैं, equator के पास है, has the no particular dry region. These trees do not shed their leaves all together. Okay, एक proper reason ये है जिसमें अपनी sheds को वो क्या करते हैं, leaves को शेड करते हैं. दिस इज़ द रीज़न दे आर द कॉल्ड एवरग्रीन. सो वो इसी रीज़न से हमेशा क्या दिखते हैं, ग्रीन. द थिक canopies of the closely shaped trees not allow the sunlight penetrate inside the forest even the daytime. हार्डवुड ट्रीज लाइक, अब इंपॉर्टेंट देखो ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए. ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स में कौन कौन से ट्रीज आते हैं, फर्स्ट इज रोजवुड, एबोनी, mahogany and common there. These are the trees important according to स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स के मेन एग्जाम्स है रोजवुड, एबोनो, mahogany एंड अदर कॉमन देयर. ओके स्टूडेंट, और ये इकोनॉमिकली हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट. ओके, these deciduous forests are only found in our India also. Okay, tropical deciduous are the monsoon forest because monsoon were related to rain. Okay, found in the large part of India, northern Australia and Central America. These region experience seasonal changes. Okay, अब देखो हमारे इंडिया में जो हमारा सीजनल चेंज है मानसून पे डिपेंड करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ट्रीज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, और एक प्रॉपर वे में क्या दिखते हैं, वो सिर्फ सारे एकदम से ब्राउन कलर के विदाउट लीव्स. ठीक है, ट्री शेड्स देयर लीव इन अ ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अब देखो एग्जाम्पल ऑफ दीज डेसिशियस फॉरेस्ट इज सॉल, टीक, नीम, शीशम. नीम भी आपने देखा होगा बच्चे, शीशम. हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. ओके, जो शीशम की वुड होती है टू इम्पॉर्टेंट फॉर द मेकिंग ऑफ द फर्नीचर्स. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल. टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ द रीजन. ओके स्टूडेंट, अब देखो according to environment, according to our temperature and climate, vegetation are change and our animals and wild animals also change. Okay, after that we discuss about the temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid latitude coastal regions. They are commonly found along and eastern margin of the continents. Example in the southeast USA, South China and southeast Brazil. They
comprise both hard and soft woods. Okay, we also find here the hard and soft woods like pine and pine and eucalyptus. Okay, eucalyptus is too important for our the economic development. Okay, now we discuss of the temperate deciduous forest. Okay, temperate deciduous forest, we go toward the higher latitude. They are mainly found in the higher latitude. Okay, they are the more temperate deciduous forests. They're found in main, where they found in the USA, China, New Zealand, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in a dry season. The common tree, oak, beech, deer, fox, wolves, animals commonly found in the bird like the monal and are used here. Okay student, now we discuss about the Mediterranean vegetation in the next video. स्टूडेंट आप जब भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टाइप ऑफ वेजिटेशन आ जाएगी तो आपको लिखना है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कहाँ पे लाइक करते हैं, इसके मेन हर्ब्स और ट्रीज़ क्या है, मेन एनिमल्स क्या है और इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. ठीक है, पॉइंट्स वाइज के लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, क्योंकि मार्क्स आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं. तो इस चैप्टर में मेनली क्या है, हमने वेजिटेशन के बारे में रीड किया. द मेन कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन इज़ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. ओके, और जो मेनली हमारी वेजिटेशन हाइट और क्लाइमेट और टेम्परेचर एंड स्लोपी एरिया एंड सोइल, ऑल दे आर द मेन फैक्टर विच इफेक्ट्स आवर वेजिटेशन. और ड्यू टू द वेरी वेजिटेशन इन आवर इंडिया वी फाइंड द मैनी डिफरेंट एनिमल्स इन आवर इंडिया. ओके स्टूडेंट, आपको इसे अच्छे से रीड करना है, इसके मेन हाईलाइट्स पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और मैंने आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है और ऑल्सो लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट, टेक केयर.